Hi, I'm Renee D'Souza, and today we are going to talk about the most crucial thing, that is how to improve our communication skills. Yes, dear friends, that is bothering for most of us, that how to improve our communication skills. A big portion of our lives spent thinking that how we will be able to strengthen our communication. So we have our role models. We think that they are speaking well and he is well versed in communication. Whereas, what about us? We look up others and we want to speak like them. Let us understand what is the difference between English as a language. Dear friends, the words that we use and the communication skills, it is just a 7%. The words includes only 7%. According to research, words are just 7% of your communication. So this is the difference of communication skills and the words what we use. So the thing what I am going to tell you is, to improve your English, you can improve on other things, that is communication skills. As I said, words or the sentence is only the 7% of your communication, and the rest are the other things what gives our most important part to our communication skills. Now the first question is, what are communication skills? Communication skills comprises of many things. Like as I said, one is words, definitely, because we need words, we need sentences to communicate. Whereas the other parts are, the secondly, your eye contact. You need to have a good eye contact with the person whom you are talking to. Yes, dear friends, not only the words, not only the sentences, whereas the body language plays a very important role to improve your communication skills. Whenever other people speak, then you think that they are speaking very well, or he is well versed in English communication. When you inherit these things, definitely that is like you have improved your communication skills. Let us understand what is the most basic difference between the language English and otherwise your communication skills. The language English and the communication skills. What is the difference between these two things? As you know, English is a language. English is a language which you use as a medium while you are talking to someone, right? And you know that communication is an art. That means an art can be mastered. Communication is an art which you can master it. If communication is an art, definitely you can master it, and many of us have mastered it. If so, why can't you master it? Definitely you too can master the art of English communication. Dear friends, no one is born with skills. Everyone learns to speak, right? Everyone learns whatever skills they need, they learn. And gradually they learn to convey their thoughts. If anyone can learn, then definitely you can also learn. Why can't you? If you really want to improve your communication skills, there are certain things that you can actually do. अगर आपको सीखनी है, तो आपको है ना, आपको ही सीखनी है ना। आप दूसरों को देखते रहते ऐसा नहीं बोल सकते कि वो ऐसा है, ये ऐसा है, इसीलिए वो सीख पा रहे हैं, ऐसा नहीं है। आई एम नॉट सेइंग दैट यू विल गेट परफेक्ट इन वन डे। आप एक दिन में तो आप परफेक्ट नहीं बन सकते, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है ना। यू विल स्टार्ट स्पीकिंग फ्लुएंट इन इंग्लिश once only when you practice English.
If you really put effort every day in that direction, then it is possible that nothing will stop you from acquiring that skill. आप जो है ना काम करेंगे उसके ऊपर, तभी आपको तो कुछ उसका फायदा, उसका रिजल्ट, फलितांश मिलेगा। अगर आप काम ही नहीं करेंगे, आप एक रूम में बैठे रहेंगे और मुझे ये क्या है ना इंग्लिश फ्लुएंसी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल चाहिए, ऐसा बोलते रहेंगे तो ज़रूर आपको नहीं मिलेगा, है ना? तो आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, उसके ऊपर आपको काम करना पड़ता है ना? दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ, कम्युनिकेशन इज़ एक्चुअली कंसिडर्ड टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्किल। ये आपको क्यों, आपको ये ना बहुत तकलीफ करके दिख रहा है, क्योंकि ये एक स्किल है। एक क्या है ना स्किल होता है, ये तांत्रिकता होती है, इसमें आपको ये हासिल करनी पड़ती है। अगर आप कम्युनिकेशन में अच्छे हो तो आप कुछ भी आप हासिल कर सकते हो, आपके जीवन में आप कुछ भी पा सकते हो, है ना? तो इसीलिए आपको क्या है ना, पाने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इफ देर इज अ वे by following which you can make your life successful, then why won't you follow? यहाँ पे एक है ना, आपको एक सड़क है दिख रहा है, अगर इसके ऊपर चलने से आपको मिल सकता है, आपका फलितांश, आपका जो एम जो आपका है वो मिल सकता है, तो आप उसके ऊपर क्यों नहीं जा रहे हैं? अगर आप हार्डवर्क करेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे, तभी आप सीख पाएंगे। दोस्तों, आप दूसरों को ब्लेम करते नहीं रहना, वो ऐसा है, ये ऐसा है, ठीक है, लेकिन यू कैन नॉट बी जस्ट ब्लेमिंग अदर्स। इट इज माई फेट, आई डोंट हैव मनी, आई डोंट हैव फ्रेंड्स टू स्पीक। नहीं है, ऐसा नहीं होता है। एटलीस्ट यू कैन ट्राई, आप ट्राई तो कर सकते हैं। अगर आप फैमिली पीपल है तो आपके फैमिली में लोग रहते हैं, अगर आप बैचलर है तो आप रूम में हैं तो रूममेट रहते हैं, अगर आप काम को चाह रहे हैं तो आपको काम में यू कैन गेट योर कुलीग्स, राइट? इफ यू आर वर्किंग, यू आर गेट कुलीग्स, इफ यू आर बैचलर, यू विल गेट रूममेट्स, इफ यू आर अ फैमिली पर्सन, यू आर हैविंग फैमिली पीपल। सो समवेयर विथ समवन यू नीड टू स्पीक, किसी से भी आपको बात करनी पड़ती है, आपको बात करनी है तो आप क्यों ना इंग्लिश में ही बात करें। अब समझ लीजिए, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आप ये हासिल कर पाएंगे। इफ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, then definitely you cannot get that fluency in English, right? Understand one thing, if you continue doing that, then only you can be successful in that. You will be getting the result. Nothing is going to change unless you change yourself. आपको अपने आप को बदलना है। अगर आप अपने आप को बदलते हैं, आप बात करने के लिए शुरू करते हैं, तभी तो आप आपके आप में बदलावन ला सकते हैं, है ना? मैं भी वैसे थी। आई यूज टू हियर द पीपल हु स्पीक फ्लुएंटली। मैं दूसरों को सुनती थी कि वो कैसे अच्छी तरह से बात कर रहे हैं, उनको देखती थी, उनका जो एक्सप्रेशन, उनका जो बॉडी लैंग्वेज आपको देखनी है और आपको सीखनी है। यू शुड बी वेरी स्टबन। आपको है ना, ये बहुत ऐसा होना है कि आपको करनी है। आई हैव टू डू दिस, मुझे ये करनी है, मुझे सीखनी है, तो आपको सीख सकते हैं। यू हैव टू बी वेरी वेरी स्टबन इफ यू वांट टू इम्प्रूव योर सेल्फ। यू हैव टू चैलेंज योर सेल्फ। आपको अपने आप को चैलेंज देना है। मैं क्यों नहीं कर सकती, मैं कर सकती हूँ, 100% मैं कर सकती हूँ। इफ यू वांट टू अचीव समथिंग बिग इन आवर लाइफ, बी इट योर कम्युनिकेशन स्किल्स और ए गुड जॉब, आपको एक अच्छी जॉब मिलनी है या आपको किसी से शादी करनी है, तो आपको क्या है ना, एक आपको पास एक यू शुड बी वेरी स्टबन। हाँ, मुझे ये करनी है करके। इट कैन बी एनीथिंग, जो भी हो सकता है। यू हैव टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। नहीं, हम कल सीखेंगे, परसों सीखेंगे, ऐसा करते रहेंगे तो नहीं हो जाएगा। यू नीड टू स्टार्ट टुडे। You cannot be keep postponing. You need to come out of your comfort zone to reach out to the people. आप किसी ना किसी से बात करनी करनी ही करनी है ना? तभी आप जब आप बात करेंगे तभी आप ये कम्युनिकेशन स्किल्स अपना पाएंगे। कम्युनिकेशन स्किल्स कैन नॉट बी इम्प्रूव्ड बाय योर सेल्फ अलोन।
यू हैव टू गो आउटसाइड, टॉक टू पीपल, एंड आपका जो घबराहट ना कम करनी है। आपको बाहर जाके दूसरों से बात करनी है, वो ठीक हो ना हो, लेकिन बात तो करनी ही है। तभी तो आप कम्युनिकेशन स्किल्स अपना सकते हैं। हर दिन आपको इसके ऊपर फाइट करना है। आपको बताना है कि मेरे से होता है, मैं कर पाती हूँ, मैं कर पाता हूँ, और मुझे करनी ही है। तभी आप कर पाते हैं। यस, it can be anybody. If you have the will to do it, definitely you can do it. और दूसरों को देख के आप ऐसे जलस मत होते रहना, उसके पास पैसा है इसीलिए सीख पा रहा है, उसके पास फ्रेंड्स है इसीलिए सीख पा रहा है। ऐसा नहीं होता है। आप है ना, आपसे क्या होता है आप देख लीजिए। अगर मैं आपको सिखा पाती हूँ, जरूर मैं आपके साथ हूँ, तो आप क्यों नहीं सीख रहे हैं, है ना। आप है ना, वो जो लिंक को क्लिक करके आप ज्वाइन होके आप सीख सकते हैं। आप क्यों नहीं सीख रहे हैं? से ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में ही सीखना है। या इफ यू वांट टू स्पीक इन हिंदी, कन्नड़ा और कोंकणी, डेफिनेटली आई कैन हेल्प यू। मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ। अगर आप हिंदी मीडियम है या कन्नड़ा मीडियम है या कोंकणी मीडियम है, और आपको इससे आपको पहले सीखनी है, तो ज़रूर आप है ना मेरा लिंक को क्लिक करके आप मेरे सेशन में ज्वाइन हो सकते हैं, है ना। इस तरह से आप बात कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं सोच के बैठ सकते हैं कि अरे भाई मेरे से बात करने के लिए कोई नहीं है। ऐसा नहीं होता है। आपको अपने आप पे भरोसा रखनी है। यू नीड टू बिलीव ऑन योर सेल्फ। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू विल हैव टू इम्प्रूव योर लिसनिंग स्किल्स। मैंने बहुत सारे वीडियोस किए हैं कि कैसे आप कम्युनिकेशन इम्प्रूव कर सकते हैं। उसमें तो पहले है आपको लिसनिंग स्किल्स, मतलब दूसरों को देखनी है कि वो लोग कैसे बात कर रहे हैं। आपको सुननी है ना। देख के आपको सुनना है कि कैसे बात करें। आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं। यू नीड टू लिसन टू अदर्स केयरफुली। In order to speak well, you will have to first listen very well. You need to be a good listener. आपको अच्छी तरह से सुनना पड़ता है। एंड दैट इज वॉट एग्जैक्टली आई यूज्ड टू डू। मैं भी ऐसा ही करती थी। जब मैं स्कूल में, कॉलेज में थी, जो भी अच्छे तरह से बात करते हैं इंग्लिश में, मैं सुनती थी, मैं देखती थी वो कैसे बात कर रहे हैं, उनका बॉडी लैंग्वेज क्या है, उनका टोन वेरिएशन कैसा है, वो कहाँ पे पॉज ले रहे हैं, कोलन, सेमी कोलन, ये सभी होता है ना। तो एक्सप्रेस कैसे कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमको ऐसे एक ही टोन में बात करते रहना है, क्योंकि not only the words that people are talking, but also the way they are talking. How are they using their hand movements? How are they using their eyes, their smile, their facial expressions, and the way of pausing at different intervals? ये सभी मायने रखते हैं। So how to modulate your voice? For example, taking a tone of your voice up and down. आप है ना, आपका आवाज जो है ना, आपकी आवाज ऊपर नीचे होती है ना। ऐसा नहीं कि आप रोबोट जैसे बात नहीं करते। जहाँ पे जो भी एक्सप्रेशंस है, फीलिंग्स है, वो आपको दिखानी पड़ती है। कुछ लोगों के साथ ये ना इनबिल्ट हो जाते हैं, रहते हैं। लेकिन अगर आपको भी ये आनी चाहिए, आप प्रैक्टिस तो कर सकती हैं। इसीलिए कुछ लोग जो वो मतलब वो ऑलरेडी कर रहे हैं, उनको देख के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, यू हैव टू प्रैक्टिस स्पीकिंग। आपको बात करनी तो सीखनी है। यू कैनॉट एक्सेल इन एनी लैंग्वेज विदाउट स्पीकिंग, है ना। अगर आपको एक्सेल होनी है, मतलब उसके ऊपर आपको है ना ये लेनी है, मास्टरी लेनी है, यू नीड टू प्रैक्टिस दैट। You need to try to improve your gesture as well as language. When you find your English is not good enough in comparison to others, you get scared of them. अगर आप जैसे आप सोचते हैं, देखते हैं कि दूसरों से मेरी अच्छी नहीं है लैंग्वेज, लैंग्वेज मेरी अच्छी नहीं है, तब आपको घबराहट शुरू हो जाती है। तब आप हिचकिचाते हैं बात करने में, है ना, दूसरों के सामने। लाइक इफ एनी नेटिव स्पीकर कम्स इन फ्रंट ऑफ यू, अगर वो कोई इंग्लिश में बात करने वाला आ रहा है और तब आप सोचें कि वो मेरे से नहीं होता है, तब आपको हिचकिचाहट हो जाती है। आपको ऐसा नहीं करनी है।
आपको क्या करनी है, आपको सोचना है कि भाई मैं किस लिए बात कर रही हूँ, मेरे लिए बात कर रही हूँ और उसके लिए बात कर रही हूँ, है ना। आपको दूसरों के लिए नहीं करनी है कुछ भी चीज़, आपको अपने के लिए करनी है। सो इफ यू वांट टू इम्प्रूव देन यू कैन नॉट बी चूजी। मैं चूजी इन लोगों से ही बात करूंगी, उन लोगों से ही बात करूंगी, ऐसा नहीं होता है। जो भी मिलता है उनसे बात करनी है। यू हैव टू टॉक विद एवरीवन, यू हैव टू टॉक टू एवरीवन एंड प्रैक्टिस विद एवरीवन। You have to be speaking with everyone, each and everyone whom you meet. So आपको किसी से भी बात करने की हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप है ना अपने लिए बात करें। आपको अपना जो आपका आइडियाज है दूसरों के साथ शेयर करनी है ना। ऐसा नहीं है कि उसके लिए कुछ चाहिए तो मैं दे रही हूँ, नहीं। तो आपको आपका आइडिया शेयर करनी है तो आप किसी से भी शेयर कर सकते हैं। तो इसीलिए आप ऐसा चूज ही मत करना कि मैं ओनली इस लोगों से बात करूंगा, ओनली इस लोगों से बात करूंगी, नहीं है। ओके, यू विल जस्ट हैव टू बी रेडी टू एक्सेप्ट इट एंड लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स एंड मूव ऑन। अगर कोई भी मिस्टेक्स होता है तो हो जाने दो, क्योंकि मिस्टेक से ही हम सीख सकते हैं ना। इट इज वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट दैट पेइंग द प्राइस। आपको प्राइस पे करनी पड़ती है। अगर आप कुछ भी करते हैं उसके लिए आप पे करते हैं ना, वैसे ही हो सकता है कुछ मिस्टेक हो गया, गलती हो गई, कोई भी हंसा आपके ऊपर, ये हो सकता है आपका प्राइस जो आप पे कर रहे हैं, कुछ तो पे करना पड़ता है इसलिए आप पे कर रहे हैं। सो एक्चुअली इन ऑर्डर टू इम्प्रूव अपॉन योर कम्युनिकेशन स्किल यू हैव टू पे द प्राइस फर्स्ट। आपको किसी भी तरह का प्राइस पे करना पड़ता है। तो आप समझ लीजिए यही प्राइस है, जो भी हंस रहा है ठीक है वही प्राइस है, नहीं तो आप कहाँ पे फेलियर हो रहे हैं ठीक है यही प्राइस है। आप प्राइस पे कर रहे हैं क्योंकि एक दिन आप उसके ऊपर आपका प्रभुत्व डालेंगे, अथॉरिटी बिल्ड करेंगे, है ना। यू आर बिल्डिंग योर अथॉरिटी ओवर कम्युनिकेशन स्किल्स। दैट मीन्स every day you are paying something, you're paying something, maybe your failures, maybe your mistakes, someone is laughing at you, so you all these are what you are paying. अगर आप है ना हिचकिचाते रहेंगे तो आप हर किस बात नहीं कर पाएंगे। इतना ही नहीं, आप बात करने को सीख नहीं पाएंगे। इसलिए आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर आनी है, आपको बात करना सीखनी है, आप बात करनी है। यू आर नेवर एवर गोइंग टू इन्फ्लुएंस एनीवन इन योर लाइफ। आप अगर बात करना सीखेंगे तो आप दूसरों को बता सकते हैं, भाई मैंने इतना कष्ट लिया, ऐसा ऐसा किया और मैं आज इतनी अच्छी तरह से बात कर रहा हूँ या इतने अच्छी तरह से बात कर रही हूँ, है ना। सो स्टार्ट गेटिंग रेडी टू एक्चुअली फेस अ लिटिल बिट ऑफ इंसल्ट दैट कम्स ऑन योर वे, है ना। आपको थोड़ी बहुत इंसल्ट लेनी पड़ती है, आप ले लीजिए, कोई बात नहीं, क्योंकि ये सभी आप पे कर रहे हैं टू बिकम द अथॉरिटी। इसके मास्टरी ले रहे हैं आप है ना, प्रभुत्व ले रहे हैं। प्रभुत्व लेने के लिए आप ये छोटी मोटी प्राइस पे तो कर सकते हैं, दे सकते हैं, है ना। सो nobody thinks about anyone. Do you think about anyone else? Maybe your family people, you can think okay they want something or something like that, but not somebody else out, not somebody else, right? आप ही देख लीजिए, क्या आप किसी के बारे में सोच रहे हैं? नहीं है। आपके जो फैमिली के बारे में सोचते हैं, लेकिन उसके अलावा आप क्या सोच रहे हैं? क्या किसी और के बारे में? नहीं है ना। तो ऐसा ही होता है, कोई भी किसी के बारे में सोचता नहीं है। इसलिए ये आप निकाल दीजिए कि वो क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा। पीपल आर नॉट एट ऑल थिंकिंग अबाउट यू। कोई भी लोग आपके बारे में सोचता नहीं है। सो टू बी ऑनेस्ट, नो वन हैज द टाइम टू डू दैट। किसके बारे में इतना समय भी नहीं है कि दूसरे के बारे में सोचे, है ना। इसीलिए दोस्तों, आप अपने बारे में सोचिए, दूसरे के बारे में मत सोचिए, वो क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा करके। आप उसके बारे में काम कीजिए, कम्युनिकेशन के बारे में काम कीजिए। आपको है ना ये स्टार्टिंग में बहुत डिफिकल्ट रहेगा, तकलीफ हो जाएगा। इट माइट बी डिफिकल्ट इन द बिगिनिंग, whereas gradually it becomes practice or it becomes a usual thing for you, है ना।
जब भी आप वॉक करना शुरू कर रहे थे, आप चलना शुरू कर रहे थे, क्या आप ऐसे ही चलना शुरू किया? नहीं। व्हेन यू आर वॉकिंग आल्सो, you must have fallen many times, right? But it's not that you stopped walking. If you had stopped walking, you would have not been walking now. So you have not stopped walking. आपने चलना बंद नहीं किया ना. अगर आप चलना बंद किया होता तो आप आज चलते नहीं थे. सो आप चल रहे हैं, इसका मतलब है आपने चलने का प्रैक्टिस किया. इसीलिए आप बात करने का प्रैक्टिस कीजिए, आप बात कर सकते हैं, है ना. तो अगर बात करने के लिए मेरी सहायता कुछ चाहिए आपको, मैं हिंदी में, कन्नड़ा में या कोंकणी में मैं आपकी सहायता कर सकती हूँ. तो आप है ना, जो भी मेरा लिंक है दिया गया है, आप क्लिक करके आप मेरे 1-to-1 सेशन को या आप मेरा लाइव सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं और आप कम्युनिकेशन आपका इम्प्रूव कर सकते हैं. एंड आई एम श्योर यू विल इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स. एंड if you improve your communication skills, your quality of your life will improve, and you are going to be finding yourself at the high level. That is success, a high level of success in your life. Yes, dear friends, that's all for today. If you need any help, definitely click the link and get into my sessions, or you can get into my 1-to-1 session or live session. If you have any comments, you can comment and tell me, as well as you can email me. Okay, I'm going to see you in the next session. That's all for today. This is Renny D'Souza, an author and India's first authority building mentor. Isn't life so amazing? Sometimes it can get crazy, but hey, that's okay. We've got another day to make mistakes and say sorry. There's no sense in our worry, 'cause all we